Class 10 students, welcome once again in this online class. So this is Firdaus, I'm your math teacher. So today I'm going to solve exercise 13.3. So in our previous session, we have completed exercise 13.3, question number 1, question number 2 and 3. So today I'm going to solve question number 4. In question number 4, here you have given a well of diameter 3 meter is dug 14-meter deep. Means what? Diameter of well here given 3 meter and depth is given 14 meter. So the earth taken out, it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. मतलब क्या हुआ? The earth टेकन आउट, जो अर्थ आपका निकाला गया, जो मिट्टी आपका निकाला गया वेल से, वो इवनली स्प्रेड कहाँ किया गया? उसके चारों तरफ। क्या फॉर्म करने के लिए? इम्बैकमेंट फॉर्म करने के लिए। और जिसका चौड़ाई, जिसकी विड्थ कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4 मीटर। ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैकमेंट। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैकमेंट। सो लेट्स सी हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू हैव गिवन diameter of well, question number 4. Diameter of well, that is d, what? 3 meter. Okay, so find the radius. Find the radius of well, that is r, 3 by 2 meter, that is 1.5 meter. Okay, now here you have given width, and before width you have given depth of well, means this is a height. This is a height of a well, that is 14 meter, and width of embankment you have how much? 4 meter. So let's see, this is your well, this is your well. Okay, now the earth taken out, digged out from the well, is evenly spread all around the well. चारों तरफ, इसके चारों तरफ डाल दिया गया। तो क्या बना यहाँ पे? ठीक है बच्चों, एक इम्बैंकमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एक इम्बैंकमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? एक इम्बैंकमेंट बन रहा है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा ले ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका इम्बैंकमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, कुछ इस तरह से दिखता है इम्बैंकमेंट वगैरह जो भी रहता है आपका वेल के अराउंड। ये रहता है आपका, इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये इम्बैंकमेंट है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, देखो ये वेल का है, ठीक है। इस तरह से आपका है। तो मिट्टी जो है कहाँ डाला गया? इसी के अराउंड डाला गया। तो ये जो आपका इसका रेडियस है, कितना रेडियस है इसका? 1.5 मीटर। और ये जो यहाँ से विड्थ है, ये कितनी है? ये 4 मीटर है। सो यहाँ से यहाँ भी 1.5 है, यहाँ से यहाँ 1.5, फिर यहाँ से यहाँ 4 मीटर है। सो दिस इज़ योर कैपिटल R इंक्लूडिंग द विड्थ, दैट इज़ 1.5 एंड प्लस 4, दैट इज़ 5.5 मीटर। ये हुआ 5.5 मीटर कैपिटल R। और ये जो आपको हाइट है, इसकी हाइट, ये जो बाहर में है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। व्हाट? ओके, एंड ऑलरेडी height of well from here to here. Okay, you have given how much? H is equal to 14 meter. Okay,
So now here you have to what the volume of a earth which is inside the well is equal to the volume of a earth inside the ring. This embankment will form the ring, circular ring. Let's see, I am drawing here. This is your circular ring. Okay, this is your circular ring. Okay, so how can you find the area of a ring? Okay, how can find you sorry, volume of a ring? This is a r, that is 1.5, and this is a capital R, which is 5.5 meter. Okay, so the formula to finding the area, no, sorry, volume, that is pi capital R square h minus pi small r square h. Okay, so here in embankment there is a two measurement of radius, that is outer radius. Okay, outer radius, that is capital R, that is a 1.5, and plus 4 you will get 5.5 meter. Okay, so now inner radius is same, inner radius will same as a radius of a cylinder, that is 1.5 meter. Okay, so now here you have to find the height. So volume of earth and in embankment, जो embankment में आपका वॉल्यूम, ये अर्थ का वॉल्यूम होगा, वही इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग्ड आउट फ्रॉम सिलेंडर. ओके, सिलेंडर से जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है एम्बैंकमेंट में वो, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग्ड आउट फ्रॉम द सिलेंडर, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ inside the embankment, what is the formula to finding a volume of earth? This is a small capital H. So I am taking the H, a capital H for height of embankment and a small h for height of a well. Okay, so here pi capital R square h minus pi small r square capital H is equal to volume of earth, that is simply pi r square small h. Okay, so here when you subtract a large volume to the smaller volume, then you will get the volume of a required circular ring. Okay, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को माइनस करना है, तो आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले पाई कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं. पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच को भी यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ मैं. यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और एच, पाई पाई कैंसिल हो गया. तो अब इसको सॉल्व करना है आपको. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना आप. ठीक है, ये देखो आपका क्या है, यहाँ पे बच रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू small r square, it is 1.5 into 1.5 into h is your 14. So here you have r square minus r square, it is 5.5 square minus 1.5 square, that is into h, 1.5 into 1.5 into 14. Okay, so here you will get, here apply the properties a square minus b square, a square minus b square, a plus b, that is 5.5 plus 1.5 into 5.5 minus 1.5. Okay, into h. So now 1.5 into 1.5 into 14. Okay, so here 7 into here 4, 7 into 4 into h is equal to 1.5 and 1.5 into 14. Okay, so now h is equal to 1.5 into 1.5 into 14 by 7 into 4. Okay, so point, replace the point 10, replace the point, you will get 10 here. So now 7 2 ja 2 2 ja, so again here h is equal to 15 15 ja 225 upon 200, 25 9 ja 25 4 ja, 25 9 ja 25 8 ja, so h is equal to 9 by 8.
मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेना है, 9/8 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आपका क्या है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका बनता है। तो ये आपका क्या है, तरीका है। जो भी आपका अर्थ डग आउट हुआ वेल से, वो आपको कहाँ पे फिलअप हो रहा है, एम्बैंकमेंट में फिलअप हो रहा है। तो वहाँ से आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस वॉल्यूम को इक्वल करना है, बनाना है, फॉर्मूला आपको सारा आना चाहिए और आपको है ना अच्छे से पुट करके सिंपली सॉल्व कर देना। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A container shaped like a right circular cylinder having a diameter 12 and a height is 15 centimeters is full of ice cream, and the ice cream is to be filled into the cones of height 12 centimeter and the diameter 6 centimeter. Means what? यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक कंटेनर दिया हुआ आपको which is in the shape of cylinder. Cylinder is given for a container which is in the shape of a cylinder, and it is full of ice cream. Okay, it is full of ice cream, and this ice cream will distributed like this among cone, है ना। कोन में क्या किया, इसको बंटवारा कर दिया गया, और कोन के ऊपर क्या बताया है, एक हेमीस्फीयर है। कोन के ऊपर क्या है बच्चों, हेमीस्फीयर है। ठीक है, सेम रेडियस और सेम हाइट का। तो इसका हम हाइट भी गिवन है आपको स्मॉल h, और सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इट इज कैपिटल D आई एम टेकिंग हियर, कैपिटल D यू हैव गिवन how much here 12 centimeter, and capital H I am taking capital H for height of a cylinder here. So this is your 15 centimeter, this is your 15 centimeter. Okay, so now is full of ice cream, and the ice cream is to be filled into the cone height 12 centimeter, height is 12 centimeter. Okay, and the diameter is 6 diameter, this is your diameter. Okay, from here to here I am taking a small d 6 centimeter. Okay, so these are the dimensions which are given here. So now having a hemispherical shape on the top, जो ये कोन है इसके ऊपर हेमीस्फेरिकल टॉप इस तरह से बना हुआ, देखो मैं बड़ा करके बना रहा हूँ इसको, यानी कि कोन है और कोन के ऊपर क्या है बच्चों, हेमीस्फेरिकल है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स, इस टाइप का कितना नंबर, कितना क्वांटिटी इस कंटेनर से फिल हो जाएगा। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको रखना है, और इसका जो वॉल्यूम निकालना है, इसका जो वॉल्यूम निकलेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये दोनों हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यू नो दैट 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर एंड स्मॉल h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई r स्मॉल r इज सेम टू द विच इज द रिमेन सेम एज कोन। ओके, जो कोन का है वही होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है, और इसके आगे क्या मल्टीप्लाई करना है, लेट द नंबर ऑफ जो ये कोन है कितना होगा, मान लेते हैं इसको x, मान लेते हैं क्या बच्चों, इसको x मान लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा, और यही किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज अ पाई कैपिटल R स्क्वायर h। सो यहाँ पे आपको कैपिटल R निकाल लेना, यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से स्मॉल r आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको पुट कर देना है, फिर इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ से देखना है एक चीज़, आप 2/3 और पाई r स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेना है, x दैट इज 2/3, सॉरी 2/3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, ओनली 1/3 कॉमन आता है, और 1/3 के साथ साथ पाई r स्क्वायर भी आता है।
तो यहाँ क्या बच जाता है, ओनली एच इस टर्म में, देखो 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर, एच हो गया, और 3 बाहर आ गया, पाई बाहर आर स्क्वायर, तो बचा 2r। तो ये इस तरह का आपका क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से पाई पाई जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेना, डाटा पुट करो और सॉल्यूशन निकाल लो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो नाउ यू हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 6 and 7, 8, 9. Okay, so we will discuss in our next class. Okay, thank you.